और जी नेक्स्ट ईमेल है लेस्बियन वाइफ. Ramzan, bro. Hello, my name is ABC. I'm 30-year-old. I was born in Lahore. I am a data scientist, graduate from one of the biggest universities of Pakistan. Purpose of this email, I would like to ask you for advice on a problem which is constantly bothering me. Background, my wife is also 30. We've been married for 4 years. We met in high school, fell in love, and always knew we wanted to be together. We got married after finishing universities and settling into stable jobs. She's a teacher. Our relationship was strong and our sex life was great. I've always found her just as beautiful as the day we met. After marriage, about a year ago, she suggested we try a threesome with another woman. I had fantasized about it, but I never brought it up because I didn't want her to think I was unhappy in our marriage. Since then, since she was the one who suggested it, I was excited and we found a woman through a dating site. The experience was amazing, and after that, it became a regular thing once or twice a month. Problem, lately things have changed. My wife keeps asking for more threesomes and even suggested bringing in two women at once, which I turned down. मतलब क्या इम्तियाज स्टोर से लाते हैं क्या आप ये लड़कियां? Last year, the most we had in a month was four. But this year, 1 month, we did it 7 times with four different. भाई क्या हो गया यार? कहाँ ट्रांसिल्वेनिया में रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? The problem is we hardly have sex, just the two of us anymore, and when we do it, it feels like she's not into it, like she's only doing it for me. A few days ago, a couple of nights ago, we invited another girl. Everything seemed normal at first. We got the house ready, set the mood, and when she arrived, we went to the bedroom. But this time, I noticed something different. My wife was way more focused on the other woman. She kissed her a lot, paid her all the attention, and even told me to move aside so she could have the woman to herself. It caught me off guard, but I didn't say anything. Even after I finished, they kept going, and not just for a little while, long enough for me to recover and go for a second round. मतलब इनका second round के लिए ready हो गए, वो उनका पहला ही चल रहा था. क्या बात है. By the time we were done, we all fell asleep together, which is something we usually do out of politeness. क्या बात है भाई. But the next morning, I woke up alone. It was 11 a.m. and I assumed my wife was in the kitchen. When I walked out, I saw her having sex with the woman on the couch. I was shocked. She had never done this before, not while I was asleep. It hurt. क्या काम धंधे पे नहीं? आपने बोला आप डेटा साइंटिस्ट हो, वो टीचर है. अच्छा सैटरडे नाइट को बुलाया हुआ, संडे संडे की बात होगी. हलवा पूरी नहीं खाते आप लोग? अच्छा, स्पेशली आफ्टर द नाइट वाज सपोज टू बी ओवर. अच्छा ये कह रहे हैं कि जी हम तो रात के लिए लाते हैं, रात हो गई, दिन में ये मॉर्निंग शिफ्ट क्यों चल रही है? इससे इनको गुस्सा आ गया. She saw me and casually asked if I wanted to join, but I just went back to the bedroom, lying there, hearing them in the next room. My heart was breaking. After sex, after the woman left, my wife came to talk to me, but instead of apologizing, she was annoyed. She told me I had made things awkward and caused tension between her and the woman. I couldn't believe it. I was too drained to argue, so I just stayed in bed. That was 3 days ago. Since then, she's been staying out late and barely talking to me. I can't shake the feeling that she's cheating, but I don't have proof and I love her too much to accuse her without knowing for sure. I feel lost and I don't know what to do. Can you suggest me what should I do now? How can we solve these issues? Thank you for reading my email. Khair, my honest opinion, I don't buy this email. I think it's fake. वो जैसे वो नासा वाला बॉय था ना, ये आई थिंक आपकी अपनी फैंटेसी है और आप लिट एरोटिका लिखने का आपकी ख्वाहिश होगी या 50 शेड्स वगैरह वगैरह. तो आपने ये कहानी मुझे तो लगता है बनाई है कि इतने मतलब चार चार औरतें 7 बार. मतलब आप क्या कहाँ से पैकेजेस मॉल से लेकर आ रहे हैं? ये लाहौर की बात की ना. हाँ लाहौर की पैकेजेस मॉल में मिलती हैं लड़कियाँ. ये डेटिंग ऐप्स पे आपको इतनी आई नो कि डेटिंग ऐप्स पे इस तरह के कपल्स मौजूद होते हैं, कपल्स वाले अकाउंट होते हैं. उन्होंने स्ट्रेट अप लिखा होता है वी आर लुकिंग फॉर अ थर्ड व्हील या वट एवर टू स्पाइस अप और मैरिज वगैरह. एंड इट्स वेरी कॉमन इन पाकिस्तान फॉर दोज हु डोंट नो. बड़ा कॉमन है. मगर अब ये आप कह रहे जी 7 7 बार चार चार लड़कियां और घर में, मतलब घर में कोई पूछता नहीं है कौन आ रहा है कौन जा रहा है? भाई इतनी सारी लड़कियां क्यों आ रही हैं? कौन सी स्लीप ओवर चल रहे हैं यहाँ पे? और आई डोंट नो मैन. चलो लेट्स अज्यूम इफ इट्स ट्रू तो योर वाइफ इज नॉट डेटिंग हर एंड अब आपने लेस्बियन लिख दिया उसको. तो अगर वो उनकी इसी तरह की अफ्लिक्शन थी, बट आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान में यू कांट बी ओपनली गे,
तो लोग फिर शादी का रास्ता इख्तियार करके या तो अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं या फिर दे फेक इट टिल दे मेक इट, और अपनी एक जो सीक्रेट लाइफ है वो जीते रहते हैं। जिस तरह मेड इन हेवन में आपको याद होगा कि वो अ, जो मकान मालिक होता है वो भी गे होता है, तो वो छुप छुप के उसकी वीडियोस देख रहा होता है। तो सो या लोग पीपल लिव डिफरेंट लाइव्स इन पाकिस्तान बिकॉज वहाँ पे ये चीज़ें कल्चरली और सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आपको लग रहा है कि आपकी बेगम वहाँ पे चीट कर रही है, अच्छा लाइक आई डोंट नो मैन। सो मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं कि लाइक यू नो इफ़ योर पार्टनर लाइक यू नो इफ़ माई पार्टनर डिसाइड्स टू यू नो मेक आउट विद अ गर्ल, मैं उतना अनॉय हूँगा जितना मैं ये सोच के हूँगा कि अगर वहाँ पे बंदा होता। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बिकॉज मैन आर टेरिटोरियल, मर्द को दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं है। बट लाइक ओके आई हैव नेवर बीन इन दैट सिचुएशन थैंकफुली, कि मतलब कोई और औरत इन्वॉल्व हो मेरी शादी में, तीसरी मतलब कहते हैं ना शादी में तीसरी शादियाँ, समथिंग समथिंग, तो एक तरफ घर वाली एक तरफ बाहर वाली, और बाहर वाली भी बीवी की साइड पे। तो हाउ डज अ मैन फील दैट वे? आई मीन ऑफ कोर्स इट इज चीटिंग, देयर इज नो डिनाइंग, इट्स जस्ट एज मच के अगर कोई मियाँ बीवी हैं और मियाँ जो हैं उनके भी कोई सैयाँ हैं बाहर, तो जाहिर है बीवी तो अनॉय होगी। अब इन योर केस जहाँ पे ओपननेस ऑलरेडी रही और इतने सारे लोगों का आना जाना रहा है आपके घर में, तो आपके घर पिज्ज़ा बहुत आता हो मुझे लग रहा है। तो अच्छा आप कह रहे हैं कि आप ये भी आपने लिखा था कि आप लोग सो जाते हैं आउट ऑफ पोलाइटनेस, सही है, तो मतलब आप फौरन नहीं भगाते, काम हो गया पूरा, आप चलिए आप यहाँ से ज़रा रश्का पकड़ के घर जाएं, वापस जाएं जॉर्ज टाउन जहाँ से आई हैं, नहीं करते आप ये, आप साथ सुला लेते हैं। तो साथ आप एक साथ बिस्तर पे सोते हैं या सोफे पे सोती हैं मैडम, या आप सोफे पे चले जाते हैं? अगर आप सोफे पे जाते हैं उधर दूसरे राउंड लग जाते होंगे, आपको पता ही नहीं होगा पीछे क्या चल रहा है। खैर, तो आपको अनोयंस ये हुई कि एक तो आपकी बेगम ने ये शुरली डाली कि भाई ये हमें बीच में और चाहिए लोग, और आपने भी कर लिया। गुस्सा आपको ये आ रहा है कि आपके बगैर वो सुबह सुबह का एक राउंड चल रहा था, हलवा पूरी चल रही था, नाश्ता चल रहा था, तो वो आपको फिर लगा कि यू आर बीइंग डिसीव्ड बिकॉज द डील वाज सपोजिटली इन योर सिचुएशन कि भाई हम मिल के करेंगे, राइट? इसलिए आप अब अग्रीड भी थे, और यहाँ आपको लगा कि ओके यहाँ पे तो मैं हूँ ही नहीं, तो अब शायद मेरी ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू फेल्ट डिसीव्ड दैट वे। तो अब वो आपके ऊपर ही रख रही हैं, तो इसको गैस लाइटिंग कहते हैं। तो वो गैस लाइटिंग की मास्टर लग रही हैं मुझे, थोड़ी मैनिपुलेटर टाइप की, कि खुद ही सजेस्ट की चीज़ें और उन्होंने बेसिकली आपके ज़रिए रास्ता ढूंढा। ये होता है ना, अक्सर कुछ लड़कियां होती हैं वो अपनी सहेली से शादी करवा लेती हैं अपने शौहर की, कि एक काम करें मेरी सहेली से, वो क्लॉजेटेड लेस्बियन ही होती हैं, उन दोनों को पता होता है कि यार हमें तो वैसे नहीं मिलेगा। थ्रूपल कहते हैं इसको, कपल को थ्रपल, थ्रपल या थ्रूपल, आई डोंट नो, दैट्स द वर्ड। तो वो तीनों ही पार्टनर होते हैं। तो वो जो है इस पे ख़वातीन इस तरह का रास्ता निकालती हैं कि भाई सलीम तो जाएंगे काम में और हम करीम हो जाएंगे। सही है ना? तो वो अपना सिलसिला इस तरह जोड़ लेती। तो इसमें भी आपकी वाइफ ने उनको शायद ये नहीं, दूसरी वाइफ वाला सीन नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ज़ाहिर इनहेरिटेंस का मसले हैं, 10,000 चीज़ें। उन्होंने बोला कि यार एक चीज़ जो बगैर निकाह के हो सकती है तो, और हर हफ्ते हो सकती है, तो वाई नॉट गो फॉर दैट, रात दिन के मैं एक सौकन, सौकन होता है या सौतन होता है, ला के बिठा दूँ मैं। तो उन्होंने ये रास्ता ढूंढ लिया, उनको नए नए फ्लेवर भी मिल रहे हैं हर हफ्ते, और जो है आप भी नाराज़ नहीं हो रहे, आप भी खुश वो भी खुश, उनका बेसिकली काम हो रहा है। तो यहाँ पे तो आई फाइंड हर टॉक्सिक इन अ वे कि आई थिंक शी वांटेड टू बी विद वुमेन एंड शी इज़ जस्ट यूजिंग यू एज अ कल्चरल बेट। अब और दूसरा ये कि ना कि मतलब घर में दोस्त आ रहे हैं, मियाँ बीवी रहते हैं, तो किसी के जहन में वो बात आएगी भी नहीं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि हाँ वो लड़की है, वो कोई पड़ोसी भी अगर कोई देख ले तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा कि हाँ तो दोस्त इनके आते रहते हैं, पार्टी वार्टी इनके यहाँ चलती रहती है। सो येस, शी इज़ प्रॉब्ली यूजिंग यू एज अ, मतलब ये कि काम तो खैर वो भी करती हैं, लेकिन इफ़ यू आर अ प्रोवाइडर, अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है प्रोवाइड उसमें, तो शी इज़ जस्ट यूजिंग यू आई थिंक फाइनेंशियली, एंड उनकी अपनी जो परसूट था दैट वाज जस्ट टू बी विद वुमेन और हैविंग यू विद वुमेन, यू नेवर नो। सो आई डोंट नो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है, मतलब आपको गुस्सा आया है और तो वो आपको कर रही हैं, उनका गुस्सा बनता नहीं है। द डील वॉज कि हम साथ साथ हैं और यहाँ पे कुछ कुछ होता है, अकेले हो रहा है।
तो ये मसला है। नहीं, द डील वॉज हम साथ साथ हैं, और जब आप संडे को सुबह उठे तो आप हो गए हम आपके हैं कौन। तो ये गेम है भाई। बट खैर एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट बाय दिस। मुझे लगता है ये फेक ईमेल है। मुझे बहुत फेक ईमेल्स आती हैं भाई, इंडियंस पाकिस्तानी बन के करते हैं, और वो जो है ना ज़रूरत पे पकड़े जाते हैं। जहाँ ज़रूरत लिखा होता है वहाँ पकड़े जाते हैं भाई। इंडियंस अगर इस तरह करना है, प्रिटेंड करना है, ट्विटर पे करना है, तो थोड़ा सा यही स्टडी कर लें कि जे को जे और जे को जे ना करें। और इसी तरह पाकिस्तानी भी इंडियन बन के बहुत सारी इस तरह की ईमेल्स करते हैं, प्रोवोकेटिव ईमेल्स करते हैं, ताकि ये कि कोई मुद्दा उनका आगे आ जाए। तो ये ज़रा मुझे लग रहा है कि आपने कोई कहानी या तो पढ़ी है, या ये कहानी आपके जहन में, आपकी ये फैंटेसी, और आप फैंटेसी शेयर कर रहे हैं। ईमेल भी आपकी जो है ना ज़ाहिर है फेक ईमेल है। सो I don't buy it. But if that's the case, then I don't know how to see this. या तो इसको ताला लगा दें सिचुएशन को, या आप थोड़ा सा गैप ले लें। बट देन इफ योर वाइफ इज गोइंग आउट, स्टेइंग आउट लेट विद द फ्रेंड, तो शी क्लियरली डजंट नीड यू इन द इक्वेशन, शी इज जस्ट यूजिंग यू। गुड लक मैन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।